Hello guys, in this lecture we will discuss about the features of Java. Guys, we know that Java is so popular and widely used programming language. So the question is, why it is so popular and useful language? What things makes it different from other languages? So here are some features which makes it popular and very useful language. So let's discuss them one by one. The first one is simple. If you have little bit of knowledge about object-oriented programming concepts and you are aware about some syntax of C++, then it is very easy to understand because its syntax are based upon C++ language. Also in Java, some of the complicated and rarely used features are removed, like explicit pointers, operator overloading, and also we don't need to manually remove unreferenced objects because there is the facility of automatic garbage collection. So these things makes it very simple language. Okay. Next is object oriented. Object oriented means everything in Java is an object. Object oriented programming means it gives importance to data being operated upon instead of operations. इससे क्या होगा, it makes it easy to maintain and modify existing code as new objects can be created with small changes in existing ones. Objects क्या होते हैं? Objects incorporates both data and behavior and it represent basic runtime entities. Runtime entities can be any real world things like a person, place or any item. So in object oriented model, it is easy to understand the working of a program. The next feature is Java is a platform independent language. Let me first tell you what is platform. Platform is a software environment in which a program run. Okay. Now what is platform independent means? Means हमने कोई टेक्नोलॉजी किसी एक प्लेटफॉर्म पे बनाई है, ठीक है, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकते हैं बिना उस कोडिंग में ज़्यादा कुछ चेंजेस किए या फिर हम बिल्कुल भी चेंज ना करें, ठीक है, या कुछ मिनिमम चेंजेस करें या फिर हमें चेंजेस करने की ज़रूरत ही ना पड़े और हम उसे किसी अदर प्लेटफॉर्म पर भी रन कर पाएँ. मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि हमने कोई भी एप्लीकेशन जैसे लिनक्स प्लेटफॉर्म पे बनाई है तो हम उसे विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं. बस हमें क्या चाहिए होता है, उस प्लेटफॉर्म के JVM की नीड होती है. तो जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कौन बनाता है, JVM. तो मैंने यहाँ इसे एक डायग्राम के थ्रू समझाया है. देखिए जावा का हम सोर्स कोड लिखेंगे यानी कि .java फाइल बनाएंगे. फिर जावा सी कंपाइलर इसे कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है यानी कि हमें एक डॉट क्लास फाइल प्रोवाइड कराता है. फिर इस डॉट क्लास फाइल को हम किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, चाहे वो मैक OS हो या विंडो OS हो या लाइनेक्स OS हो, लेकिन बस हमें क्या चाहिए, उसके JVM की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो JVM क्या है, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाता है. Okay, the next feature is secure. Java is a secure language. There are so many things that makes Java more secure language. Like the first one is no use of pointers. ठीक है, the only disadvantage of pointer is that it may cause unauthorized access to memory blocks when other programs get the pointer value. That's why Java never uses any kind of pointers. It has its internal mechanism for memory management. Okay. Next is exception handling concepts. देखिए एक्सेप्शंस क्या होती हैं, एक्सेप्शन होती है रन टाइम एरर्स, ठीक है, जो हमें कंपाइल टाइम पे नहीं पता चलती लेकिन कहाँ पता चलती हैं, रन टाइम पे. तो एट रन टाइम जावा कैन कैच द अनडिजायर्ड रिजल्ट थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड रिपोर्ट टू द प्रोग्रामर. सो दिस फीचर एड सिक्योरिटी टू जावा. The third one is bytecode. I have already told you about the bytecode. Bytecode is what? Which generated by Java C compiler. Okay, and it is not a machine code. Okay, it is different from the machine code. So when a user compiles the Java program, the Java C compiler creates a class file which is called bytecode, which are tested by the JVM at the time of program execution for viruses and other malicious files. So it provides security to the Java language. The next is security APIs. APIs means application programming interface. Java class library has several API that related to security, and these API is involved in cryptographic algorithms, secure communication and authentication protocols. Okay.
द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए हमें पता है कि जावा का अपना ही मेमोरी मैनेजमेंट का तरीका होता है। जैसे इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है, ठीक है। होता क्या है, देखो जैसे सी या सी प्लस प्लस में हम कोई मेमोरी यूज़ करते हैं तो हमें उसे मैनुअली फ्री भी करानी होती है, लेकिन जावा में हमें मैनुअली फ्री करवाने की ज़रूरत नहीं है मेमोरी को, ठीक है। ये कौन करता है, जेवीएम ये काम खुद करता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपाइल टाइम चेकिंग। कंपाइल टाइम चेकिंग मतलब रन करने से पहले ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। किस टाइप की एरर, जैसे कि मान लो कोई अनऑथोराइज्ड मेथड किसी प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका हम कंपाइल टाइम पर ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो जावा को क्या बनाते हैं, सिक्योर बनाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज रॉबस्ट। जावा इज़ अ रॉबस्ट लैंग्वेज। रॉबस्ट का सिंपली मीन्स है स्ट्रॉन्ग। जो अभी हमने फीचर्स पढ़े थे कि जावा इज़ अ सिक्योर लैंग्वेज, तो जो फीचर इसे सिक्योर बनाते हैं तो वो इसे स्ट्रॉन्ग यानी एक रॉबस्ट लैंग्वेज भी बनाते हैं। जावा इज़ रॉबस्ट बिकॉज इट फोकसेस ऑन हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड टर्मिनेशन एंड अनएक्सपेक्टेड एक्शंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये एक रॉबस्ट लैंग्वेज बन जाती है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, इट डजेंट यूज एनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉइंटर, इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन टू रिमूव अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके, अनदर थिंग इज देयर इज एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, जो रन टाइम एरर्स को कैच करने के काम आती है, ठीक है। तो ये सब फीचर्स क्या हैं, इसको क्या बनाते हैं, रॉबस्ट बनाते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज पोर्टेबल। देखो पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रन अ प्रोग्राम ऑन डिफरेंट मशीन। यानी कि हमने जो प्रोग्राम किसी एक मशीन पे बनाया है वो हम उसे दूसरी मशीन पर बिना कुछ ज़्यादा चेंजेस किए भी रन कर सकते हैं, ठीक है। और जावा को पोर्टेबल कौन बनाता है, जावा के बाइट कोड्स। जावा फैसिलिटेट्स टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म। ये मैंने आपको अभी बताया है, जिसमें जब हमने पढ़ा था कि जावा क्या है, राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। तो कौन इसे पोर्टेबल बनाता है, द ओनली वन थिंग मेक्स इट पोर्टेबल, दैट इज जेवीएम। हमें बस उस नए प्लेटफॉर्म का क्या चाहिए होता है, जेवीएम, और हम इसके कोड को वहाँ पे रन कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट द प्रोग्राम रिटन ऑन वन प्लेटफॉर्म और ओएस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट एंड कैन रन ऑन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट रिकम्पाइलिंग दैम। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जावा क्या है, पोर्टेबल है या फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या फिर आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पे वर्क नहीं करती है, मतलब एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पर बेस नहीं होती। हम कोई भी प्रोग्राम अगर किसी एक मशीन के लिए बना रहे हैं तो हम उसे किसी और पर भी रन कर पाते हैं, ठीक है। जावा कंपाइलर जनरेट्स एन आर्किटेक्चर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट फाइल, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड, which makes it compiled code to be executed on many platform with the presence of Java runtime environment। ये मैंने आपको पहले बताया, JVM क्या है, जावा का इंटरप्रेटर है जो क्या करता है, जावा को क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि यूजर्स कैन क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। क्या होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस? A distributed application is a program that runs on more than one computer and communicates through a network, ठीक है। In Java, we can split a program into many parts and store these parts on different computers। यानी कि एक जावा का प्रोग्रामर जो है किसी एक मशीन पे वर्क कर रहा है एंड कैन एक्सेस अनदर प्रोग्राम रनिंग ऑन द अनदर मशीन। ओके, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन लार्ज प्रोजेक्ट्स आर डेवलप्ड। ऑब्वियसली जब हमें लार्ज प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत होती है तो हम इसे क्या है, पार्ट्स पे बना सकते हैं, यानी एक मशीन पर उसका एक पार्ट रख सकते हैं, दूसरी मशीन पर दूसरा, और इससे क्या होगा, फिर आपस में हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्क, ठीक है। ये पॉसिबल कैसे हो पाता है, दो कंसेप्ट हैं जैसे कि RMI एंड EJB आर यूज फॉर क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। RMI क्या होता है, रिमोट मेथड इन्वोकेशन, एंड EJB मीन्स एंटरप्राइज जावा बी। RMI यानी कि रिमोट मेथड इन्वोकेशन इज अ mechanism that allows an object residing on one system to access or invoke an object running on another system. Okay? And EJB is what? EJB are specifically designed to implement the business logic for your applications.
Okay, these two things, these two concepts makes it distributed language. The next concept is multi-threading. Multi-threading means handling multiple jobs simultaneously or executing multiple portions of the same program in parallel. इससे होगा क्या, हमें थ्रूपुट ज़्यादा मिलेगा, रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्स जैसे कि सीपीयू या मेमोरी का यूसेज कम होगा. यूसेज कम कैसे होगा, देखो जो थ्रेड्स होते हैं वो मेमोरी को शेयर करते हैं, यानी कॉमन एरिया में काम करते हैं. ऐसे नहीं है कि हर थ्रेड को अलग अलग मेमोरी स्पेस मिलता है, ऐसा नहीं है, वो कॉमन मेमोरी एरिया पे वर्क करते हैं. तो इसलिए इससे क्या होगा, मेमोरी यूजेस कम होगा. और क्या होगा, टाइम सेव होगा क्योंकि सो मैनी ऑपरेशंस आर परफॉर्म टुगेदर. मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी. और क्या होगा, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस. ठीक है, तो क्या है, जावा इज़ अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. The next Java feature is that it is dynamic and extensible. It means we can add classes and new methods to classes, creating new classes through सब क्लासेस. यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी बनी हुई क्लासेस के थ्रू हम न्यू क्लासेस डिराइव कर सकते हैं, उनमें न्यू मेथड्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है, दिस मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू एक्सपेंड आवर ऑन क्लासेस एंड इवन मॉडिफाई दैम. यानी हम अपनी ही क्लासेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं और ईजिली उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं. Java gives the facility of dynamically linking new class libraries, methods and objects. It means हम रन टाइम पे लिंकिंग कर सकते हैं, यानी अगर हमें क्लासेस की ज़रूरत है हम क्लासेस को ऑन डिमांड लोड कर सकते हैं. इट ऑल्सो सपोर्ट्स डायनामिक कंपाइलेशन एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, दैट इज़ गार्बेज मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये सब हमने देखे कुछ जावा के फीचर्स, यानी कि जो जावा को क्या बनाते हैं, मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल लैंग्वेज. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज.